Hello and Assalamu alaikum. A very warm welcome to Learn Correct English and welcome back to my YouTube channel. So today we will be learning about Cambridge English vocabulary list. It is available to you people online and you can download it at any time. Plus, this lecture would improve your vocabulary. It would enhance your expression. It would add some more words to your vocabulary, some more words to your choice of picking up the right words. Like, for example, if we are dealing with certain situations in our life, we keep on picking the repetitive words in our life. But if we add some new words in our life, in our vocabulary choice, in our linguistic repertoire, so what happens in that case? That your conversation, your simple sentence would become intriguing and interesting for the people that are listening to you. All right, so this lesson would improve your vocabulary. It would improve your expression. It would enhance your choices for the words for a specific repetitive word. All right, so we will begin this vocabulary series today. And if you have not subscribed to my YouTube channel, kindly do subscribe. And this is the series which we are going to follow in the days to come. Plus, I would also be adding some videos on the word classes. Like, for example, I would be teaching you nouns, verbs, pronouns. So, what are their types and in what context they are used. So, side by side, we would be dealing with the list of vocab, and simultaneously, we will be doing the वर्ड क्लासेस ऑल्सो ऑल राइट अगर आपको ये बात इंटरेस्टिंग लग रही है या इफ यू वांट सम मोर टॉपिक टू बी कवर्ड डू कमेंट और डू शेयर विद मी in and I will make a video on that. So without further delay, we would like to start our topic for today. All right. So the very first word we have in our vocabulary list from the Cambridge vocabulary list, we have this a and an. So we all know that a and an, they both are determiners. So determiner क्या करता है? Determiner एक place या जो आपका एक noun होता है उसको उसने इंट्रोड्यूस करवाना होता है एक सेंटेंस में. सो वी प्लेस अ डिटर्मिनर बिफोर दैट नाउन. तो ये आपने देखा होगा डिफरेंट नॉवेल्स में, डिफरेंट स्टोरीज में, डिफरेंट सेंटेंसेस में, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, कि किसी भी हमने चीज़ को जब इंट्रोड्यूस कराना तो पीछे हम डिटर्मिनर लगाते हैं. एक तो ये इसका फंक्शन हो गया. दूसरी बात ये, एक तो हम इंट्रोड्यूस इससे करवा रहे हैं अपने ना नाउन को जो भी आ रहा होता है. ठीक है, पहला फंक्शन इसका ये हो गया. दूसरा फंक्शन ये होता है इसका कि इट टेल्स अस अबाउट दी, ये हमें डिटरमिन कर देता है कि जी जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर में. ठीक है, हम ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं. ठीक हो गया. सो लेट अस हैव अ लुक एट दी सेंटेंसेस. ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय. ठीक है, यहाँ पर अब आप देखें हमने एक बॉय को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उससे पहले वी हैव प्लेस्ड दिस डिटर्मिनर A. So this is an umbrella. So we have placed this determiner and before this umbrella. So it might also be noticed that and comes with the vowel sounds and A comes with the consonant sounds. ठीक हो गया. A किसके साथ आता है? कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं जो वाउल साउंड्स नहीं होती हैं. ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जो भी हमारे पास साउंड्स आएंगी हमने उसके साथ क्या लगाना है? ए. और फिर हम लोग एन लगाते हैं अम्ब्रेला, लाइक ई. ये वाली साउंड है ये हमने इसीलिए लगाई है क्योंकि ये वाउल साउंड आ रही है अम्ब्रेला में. ठीक है. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज गिवन इन द लिस्ट. दिस इज एबिलिटी. सो ये किस वर्ड क्लास से बिलोंग करता है? ये नाउन की वर्ड क्लास से बिलोंग करता है. इफ समवन आस्क यू इन एनी एग्जाम दैट टेल अस अबाउट द वर्ड क्लास ऑफ एबिलिटी, इट वुड बी नाउन. नाउन कैसे है? ये आपकी एक कैपेबिलिटी है. ठीक है, आपकी एक स्ट्रेंथ है कोई काम करने की. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी इन दी सेंटेंसेस, यू हैव द एबिलिटी टू पास दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स. आप यहाँ पर देखें कि
यू हैव दिस, मतलब आपके पास एक चीज है, उसका क्या नाम है? उसका नाम एबिलिटी है। तो दैट इज वाई इट इज स्टैंडिंग एज ए नाउन। So we all know what is a noun. Noun is any name of a person, thing or place. ठीक हो गया। इसी तरह एबिलिटी भी क्या है? आपकी एक स्ट्रेंथ है, आपकी एक आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है, एक पोटेंशियल है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी प्लेस नाउन विथ एबिलिटी। ठीक हो गया। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट word choice that we have in our Cambridge list. The kid was able to read English well. So here, this able is defined as an adjective. Adjective क्या होता है? इस तरह से आपकी ये वर्ड क्लासेस भी रिवाइज हो जाएंगे और मैं इनको सेपरेटली भी डील कर दूंगी। सेपरेट टॉपिक पे हम लोग सेपरेट अपना लेक्चर लेके चलेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर है एबल। एबल का मतलब होता है कि किसी काम को करने के काबिल। ठीक है, तो इसमें देखें, द किड वॉज एबल टू रीड इंग्लिश वेल। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को। नाउन की कोई भी क्वालिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर वो मॉडिफाई कर रहा है किड को। किड क्या है? किड एक नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वालिटी बता रहा है कि किड की, कि वो जी एक एबल है इतना कि वो इंग्लिश अच्छी तरह रीड कर सकता है। So you got the point how it is mentioned as an adjective. The kid was able to read English well. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो किड है वो इतना काबिल था या इतना वो उस चीज में पॉलिश था, तो कि वो उसने इंग्लिश को अच्छी तरह से पढ़ लिया। So that is how it is acting or it is functioning as an adjective. All right. So let us move towards the next word. This is about. So about can be used as an adverb and as a preposition. अच्छा, एडवर्ब का क्या होता है? हमारी जो डेफिनेशन होती है, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एक्शन। ठीक है, और preposition क्या होती है? preposition हमें किसी भी चीज की प्लेस बताती है। ठीक है, मतलब वो कोई चीज अबव है, बिलो है, राइट है, फ्रंट है, डाउन है, अप है। ठीक है, ऐसा की जो डिफरेंट पोजीशंस होती है ना किसी भी चीज की, किसी भी पर्सन की, तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें प्रपोजिशन बताता है। सही हो गया। सो अगर हम इस सेंटेंस को देखें, अबाउट 500 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द कॉलेज एग्जाम। अब यहाँ पर देखें, जो एडवर्ब होता है उसका ये भी काम होता है कि वो आपके जो नाउन होता है उसके साथ जो एडजेक्टिव आ रहा होता है वो उसको भी क्या करता है? उसको भी हेल्प करता है, उसको भी इम्प्रूव करता है। इट टेल्स अस मोर अबाउट द एडजेक्टिव दैट हैज कम विद द नाउन। अब ये देखें, यहाँ पर ये नाउन है। ठीक है, ये जो 500 है ये हमें क्वांटिटी बता रहा है कितने स्टूडेंट्स हैं, तो दैट इज हाउ ये क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब क्वालिटी और उसकी वो क्वांटिटी हमें पता चल रही है। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया हमारा। अब जो अबाउट है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है, वो इसके बारे में बता रहा है। तो दैट इज हाउ अबाउट इज एक्टिंग हेयर एज एन एडवर्ब। ठीक हो गया। If there are any confusions, you may comment below. All right. So in this sentence, the film is about a small boy. Here, this about is telling us about a small boy, and it is also telling us about the film. अच्छा जी, फिल्म किसके ऊपर बनी है? फिल्म हमारी बनी है एक स्मॉल बॉय के ऊपर। So that is how it is acting as a preposition. ठीक हो गया। That is how this word about acts as an adverb and acts as a preposition. ठीक हो गया। अच्छा जी, now let us have another word here. So we have above here. अब above आपने देखना है कि ये एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन कर रहा है, ये एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहा है और ये प्रपोजिशन की तरह भी फंक्शन कर रहा है। पहले देखते हैं प्रपोजिशन की तरह कैसे फंक्शन कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रपोजिशन क्या बताता है? हमें किसी भी नाउन की हम प्लेस या पोजीशन या उसकी मूवमेंट बताता है। सो हेयर शी हेल्ड हर आर्म्स अबव हर हेड। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि जो उसने, उसके जो हर आर्म्स हैं वो कहाँ पर हैं? अबव हर हेड। ठीक है, तो ये पोजीशन बता रहा है हमें उसके आर्म्स की। ठीक हो गया।
तो दैट इज हाउ इट इज एक्टिंग एज प्रपोजिशन। अच्छा, अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं। एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट और अबव हैज टू रिपोर्ट दिस इशू। अब यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि एन ऑफिसर, कोई एक ऑफिसर है जो जिसका क्या रैंक हो, सुपरिटेंडेंट या इससे अबव। ठीक है, अब यहाँ पर किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है अबव? अबव रैंक को क्वालिफाई कर रहा है। रैंक क्या है? उसका एडजेक्टिव है ना, मतलब रैंक से हमें उसकी क्वालिटी पता चल रही है, उस इंसान की कोई भी उसके कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल रहा है। तो रैंक इस तरह से हमें बता रहा है कि वो पर्सन जो है किस पोजीशन पे बैठा है। तो वो सुपरिटेंडेंट या उससे अबव हैज टू रिपोर्ट दिस इशू। ठीक है, अब आपने देखा रैंक हेयर इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, एज इन के जी वो हमें क्वालिफाई करे कि जी सुपरिटेंडेंट का एक रैंक है। ठीक है, अब अबव यहाँ पर किस तरह से फंक्शन कर रहा है? अबव हेयर इज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब। ठीक है, वो कैसे? वो हमें रैंक को क्वालिफाई करके बता रहा है। वो हमें रैंक को बता रहा है कि जी सुपरिटेंडेंट या इसके जो अबव रैंक है उसने इस इशू को जो है रिपोर्ट करना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम चलते हैं। द अबव बुक इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स ऑफ आयरलैंड। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन किया है एज एन एडजेक्टिव। अच्छा, अब अभी हमने देखा है कि जी एक नाउन होता है, उसको जो पीछे से जो वर्ब क्वालिफाई करता है उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक हो गया? अब ये जो द अबव बुक है ये हमें बता रहा है कि दिस इज एन एडजेक्टिवल क्लॉज। ठीक है, यहाँ पर ये हमें क्या बता रहे हैं? एडजेक्टिव इज टेलिंग अस मोर अबाउट द नाउन। कि वहाँ हो सकता है बहुत सारी बुक्स पढ़ी हो, ठीक है, ढेर सारी बुक्स पढ़ी हो। तो ये जो अबव वाली बुक है ये किसके रिलेटेड है? ये करंट अफेयर्स ऑफ आयरलैंड से रिलेटेड है। दैट इज हाउ दिस एडजेक्टिव इज टेलिंग अस अबाउट दिस नाउन। ठीक हो गया? दैट इज हाउ दिस अबव is functioning as an adjective here, and it is telling us or giving us more detail about the noun. ऑलराइट, सो ये इस तरह से है कि जी अबाउट आपके एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है और प्रपोजिशन की तरह भी काम करता है। ये आपने डिसाइड करना है कि उसकी प्लेसमेंट किस जगह पर आएगी और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर तो वो हमें मूवमेंट या पोजीशन के बारे में बताता है किसी भी नाउन की, किसी भी चीज की, तो फिर वो प्रपोजिशन। अगर वो एडवर्ब कोई वर्ब के एक्शन को वो क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, या वो जो है किसी एडजेक्टिव को उसमें ऐड कर रहा है डिटेल्स, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या लेंगे? एडवर्ब। और अगर एक एडजेक्टिव है वो नाउन के बारे में हमें बता रहा है, द अबव बुक मतलब एक ऊपर पढ़ी किताब। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कौन सी किताब? ऊपर पढ़ी किताब। ऑल्दो यहाँ से आपको ये फील होगा कि जी ये प्रपोजिशन है, ठीक है, बट here it is acting as an adjective. So these are the very minor details, and you need not to get confused in this. These are the 5 vocabulary words from the Cambridge English, and I have explained these 5 words to you people. And this journey of sharing vocabulary from the Cambridge list would continue in the days to come. And I hope that you have found this video useful. If you have found this beneficial for you, you may subscribe to my YouTube channel and do comment and share. So this was all for today. And I would like you people to listen to my videos on the rules of using English language, on the rules of using proper grammar in the English language in order to enhance your English. So this is all. Thank you so much. Learn correct English.